Hello students, good morning to all of you. Students, in previous lecture I have discussed about the integration by using trigonometric identities, and also I have discussed about some problems of exercise 7.3. In this lecture I will discuss about the remaining problems of exercise 7.3. Okay. So the question number 13 is cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha. Okay. Now to find the integral of this function, we have to change this into standard integrals. Okay. For this, cos 2x can be written as 2 cos square x minus 1. Similarly, cos 2 alpha can be written as 2 cos square alpha minus 1. Okay. Now, integral I equal to, this can be written as 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha minus 1 total upon cos x minus cos alpha. Okay. Now 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha plus 1 total upon cos x minus cos alpha dx. Now minus 1 and 1 will cancel to each other, and 2 can be taken as a common factor. So this integral will be cos square x minus cos square alpha total upon cos x minus cos alpha dx. Okay. Now this can be factorized by the identity a square minus b square. Okay. As you know that a square minus b square is equal to a minus b in first bracket and in next bracket a plus b. Okay. So by this identity, this can be written as cos x minus cos alpha in first bracket cos x plus cos alpha total upon cos x minus cos alpha. Okay. dx. Now cos x minus cos alpha will be cancelled to each other. Now 2 integral of cos x plus cos alpha dx. Okay. Now this can be written as 2 integral of cos x dx plus cos alpha 1 dx. Okay. Since cos alpha is a constant quantity, okay, so this can be taken out from integrals. So this can be written as, now integral of cos x is equal to sin x. Okay. So sin x plus cos alpha into integral of 1 is x plus c. So the integral of this will be sin x plus x cos alpha plus c. Okay. So this is the final answer of this question. Now next question is question number 14. Question number 14 is cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x. Question number 14 is integral of cos x plus sin x, minus sin x, cos x minus sin x total upon 1 plus sin 2x
अंडरस्टैंड। नाउ cos x माइनस साइन x टोटल अपॉन, अच्छा अब इसमें 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। एज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1, so in place of 1 we can write sin square x plus cos square. Okay, now sin 2x can be written as 2 sin x into cos x dx. Now this integral will be cos x minus sin x total upon, and this expression can be written as sin x plus cos x of whole square dx. Okay, now cos x minus sin x is the derivative of sin x plus cos x. Okay, so to find the integral of this function we have to put sin x plus cos x is equal to t. Okay, now differentiate this sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x होगा, dx is equal to dt. now dx is equal to 1 upon cos x minus sin x dt. ओके, अब आप इतने की जगह पे t पुट कर दीजिए और dx की वैल्यू क्या पुट करना है ये, ठीक है, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा। नाउ I इज इक्वल टू cos x माइनस sin x टोटल अपॉन t स्क्वायर, इसमें को हमने क्या लिया है t, यहाँ पे t पुट करेंगे, dx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन cos x माइनस sin x dt. now cos x minus sin x cancel to each other. now integral is 1 upon t square dt, और t स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट 1 अपॉन t स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करने के लिए t स्क्वायर को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो t की पावर -2 dt होगा, और अब आप x की पावर n के फार्मूला से इसको इंटीग्रेट करोगे तो t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c होगा। इसको आप लिख सकते हो -1 अपॉन t प्लस c, वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करोगे t की तो -1 अपॉन ये हो जाएगा sin x प्लस cos x प्लस c। ओके, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या आएगा -1 अपॉन sin x प्लस cos x प्लस c, ये इसका इंटीग्रल होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Question number 14 is 15. tan cube 2x into sec 2x. Integral of tan cube 2x into sec 2x dx. अब tan cube को हम ब्रेक करेंगे tan स्क्वायर इंटू tan, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx, और tan स्क्वायर को फर्दर हम ब्रेक करेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1, तो tan स्क्वायर को लिख सकते हो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx
माइनस माइनस tan 2x इंटू sec 2x dx. ओके, नाउ I इक्वल टू विल बी दिस. अब इसको हम I1 कंसीडर कर लेंगे, इसको I2 कंसीडर कर लेंगे. नाउ I1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx एंड I2 इज इक्वल टू tan 2x इंटू sec 2x dx. अब I1 और I2 को हम इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर देंगे. नाउ I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2. ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए पहले I1 को आप इंटीग्रेट कीजिए. ये होगा sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx. ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, sec 2x को t ले लीजिए, तो sec 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt. तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 sec 2x इंटू tan 2x dt. ओके, अब आप इसमें वैल्यू कर दीजिए. नाउ I1 इज इक्वल टू, इतने को हमने क्या लिया है, sec 2x को t, ये t स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 sec 2x इंटू tan 2x इंटू dt. क्लियर, sec 2x tan 2x ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/2 t स्क्वायर dt. और इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1/2 t की पावर 3/3 प्लस c. ओके, नाउ 1/6 t की वैल्यू कर दीजिए यहाँ पे, तो sec 2x होल पावर 3 प्लस c. c1 कर लेते हैं यहाँ पे, c1. ठीक है, नेक्स्ट देखिए I2 पार्ट कैसे इंटीग्रेट होगा. नाउ I2 इज इक्वल टू, I2 लिखा sec 2x इंटू tan 2x. ओके, ये I2 था, सेकंड इंटीग्रल. अब ये डिफरेंशिएशन है sec 2x का. ओके, तो 2x को यहाँ पे जब हम t पुट करेंगे, पुट 2x इज इक्वल टू t, dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा. I2 ये कन्वर्ट होकर के होगा 1/2 sec t इंटू tan t dt होगा. और sec t tan t, ये sec t का डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sec t 1/2 sec t प्लस c2 हो जाएगा. वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, ये हो जाएगा sec 2x प्लस c2, ये I2 आएगा. नाउ I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 माइनस I2 है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए. इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा, I इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू क्या आई थी, 1/6
माइनस आई टू की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 1/2 सेक 2x माइनस c2। ओके, नाउ लेट c1 माइनस c2 इज इक्वल टू c, सो I इज इक्वल टू होगा 1/6 सेक क्यूब 2x माइनस 1/2 सेक 2x प्लस c। ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 16 है, tan की पावर 4x, tan की पावर 4x dx। अच्छा, tan की पावर 4x को इंटीग्रेट करने के लिए इसको आप tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर में ब्रेक कीजिए, क्योंकि tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx ये बन जाएगा। और अब आप इसको एक tan स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए sec स्क्वायर x माइनस 1 में, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x dx। ठीक है, इसमें sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी मैंने यूज कर लिया। ये ब्रैकेट ओपन करोगे, ये sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx ये बन जाएगा माइनस tan स्क्वायर x dx ये होगा। अब इसको आप कह सकते हो ये sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस, इसको भी आप ब्रेक कर लीजिए sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। क्लियर है? अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, sec स्क्वायर x ये इंटीग्रल है, सॉरी डेरिवेटिव है tan x का। sec स्क्वायर x ये डेरिवेटिव है tan x का, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, tan x इक्वल टू t पुट करेंगे। क्लियर है? तो ये बन जाएगा t स्क्वायर, और t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, चलिए इसको हम I1 I2 में ले लेते हैं। लेट I1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। ठीक है, एंड I2 इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट कर लेंगे। I1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। इसमें पुट कीजिए tan x इज इक्वल टू t, ये sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, dx इक्वल टू 1/sec स्क्वायर x dt हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू, इसको मैंने t लिया है तो t स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू आई है 1/sec स्क्वायर x इंटू dt, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t स्क्वायर dt, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट क्या होगा, t³ प्लस c1 कर लीजिए। यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t की जब आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, I1 इज इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा tan क्यूब x प्लस c1। क्लियर है, ये I1 आ गया। नाउ
आई टू इज इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ये था। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, tan एक्स, वन का क्या होगा एक्स, ठीक है, प्लस C2 कर दीजिए, ये I2 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, I, ठीक है। नाउ I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, डिफरेंस था दोनों का, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 tan क्यूब एक्स प्लस C1 माइनस tan एक्स, ठीक है, प्लस एक्स माइनस C2 हो जाएगा। लेट C1 माइनस C2 इज इक्वल टू C, इंटीग्रल चेंज होकर के क्या होगा, 1/3 tan क्यूब एक्स माइनस tan एक्स प्लस एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आप सेपरेट कर दो, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस होगा कास क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा साइन अपान कास इंटू 1/कास, तो ये बन जाएगा, ठीक है, साइन एक्स अपान कास, ठीक है, इंटू 1/कास, ऐसे ये बन जाएगा। और यहाँ पे आप कास स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा कास एक्स अपान साइन एक्स इंटू 1/साइन, ये बन जाएगा डी एक्स। क्लियर है। और इसको आप दे सकते हो tan, इसको दे सकते हो sec, तो ये बन जाएगा tan x इंटू sec x डी एक्स प्लस ये बन जाएगा cot x इंटू cosec x डी एक्स। इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये डेरिवेटिव है sec x का, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा sec, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होते हैं। cot x इंटू cosec x, ये डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स का, यहाँ पे इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कास 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स। इंटीग्रल ऑफ कास 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स टोटल अपॉन कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको आप सेपरेट कर लीजिए और इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके। cos 2x की वैल्यू लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स टोटल अपॉन कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/कास स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, tan x होगा, तो tan x प्लस सी, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज 1/sin x into cos 2x, 1/sin x into cos 2x। क्लियर। अब इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में चेंज करने के लिए sin x into cos 2x, डिनोमिनेटर में cos x का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मैंने cos x से डिवाइड कर दिया, तो cos x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और ये इंटीग्रल हो जाएगा 1/, इसको आप क्या लिखोगे, tan x, ये हो जाएगा, इसको आप लिखोगे cos 2 into cos, ये बन जाएगा sec की पावर 4x dx, 1/cos की पावर 4 बनेगा, ठीक है। और इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, और अब इसको आप sec स्क्वायर को देखिए, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है, टोटल अपॉन tan x dx, और sec स्क्वायर को लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx। क्लियर। एक sec स्क्वायर x को मैंने tan में चेंज कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर, ये sec स्क्वायर एज इट इज है। अब आप इसमें tan x को पुट कर दो, tan x इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, dx इज इक्वल टू होगा 1/sec स्क्वायर x dt होगा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन t इंटू sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक लाइन लिख देते हैं, sec स्क्वायर x इंटू 1/sec स्क्वायर x dt होगा, ये से कैंसिल आउट होगा, ठीक है। इसको आप सेपरेट कर लीजिए, तो 1/t dt प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन t, क्या आएगा, t dt होगा, ठीक है। और अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, जब इंटीग्रेट करोगे तो इतने का इंटीग्रेशन होगा log मॉडुलस t प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, t की जब वैल्यू पुट करोगे ये होगा log मॉडुलस tan x प्लस 1/2 tan स्क्वायर x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x आप होल स्क्वायर dx, ठीक है। cos 2x को आप cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x के फॉर्म में ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x टोटल अपॉन cos x प्लस sin x आप होल स्क्वायर dx। इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन नेक्स्ट ब्रैकेट cos x प्लस sin x, ओके, टोटल अपॉन cos x प्लस sin x dx। अच्छा यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इस
इससे इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रल होगा cos x माइनस साइन एक्स टोटल अपान cos x प्लस साइन एक्स dx। इतने का डेरिवेटिव आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू की होगा cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल देखिए किस बार में चेंज हो जाएगा। नाउ dx इज इक्वल टू होगा 1 अपान साइन एक्स cos x पहले कर लेते हैं, cos x माइनस साइन एक्स dt हो जाएगा। ठीक है, मैंने cos x को पहले लिख दिया है। और अब आप इंटीग्रल में वैल्यू पुट करोगे, इसमें की जगह पर t पुट करोगे और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स टोटल अपॉन t इंटू dx की वैल्यू जब पुट करोगे तो cos x माइनस साइन एक्स dt, cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। i इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन t dt और इसका इंटीग्रल क्या होगा log मॉडुलस t प्लस c। वैल्यू पुट कर दीजिए, i इक्वल टू होगा log मॉडुलस t की वैल्यू क्या आपने लिया cos x प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 20 का फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Now question number 21 is sin inverse cos x। sin inverse cos x dx। अच्छा, इसको लिख सकते हैं sin inverse cos x को लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस x dx। और ये हमने पढ़ा है sin इनवर्स ऑफ sin x इज इक्वल टू x होगा। आईडीएफ में एक प्रॉपर्टी है, तो इसको ले सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 1 dx माइनस x dx 1 बाई 2। 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट क्या होगा x माइनस x का, देखिए x का इंटीग्रल क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 होगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। अच्छा, इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, साइन a माइनस b से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन a माइनस b, साइन a माइनस b। ये हो जाएगा cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे हम a माइनस b को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे, देखिए ठीक है a। अब इसमें x आप ऐड कर दीजिए और x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा ठीक है a माइनस x प्लस x माइनस b। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रल ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं साइन x माइनस b माइनस
एक्स माइनस ए, ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी डी एक्स। अब यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ही होगा 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ, ये होगा साइन एक्स माइनस बी इंटू कास एक्स माइनस ए माइनस कास एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, ठीक है। और इसको साथ में हम सेपरेट भी कर लेंगे। ये हो जाएगा कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी। ऐसे यहाँ पे लिखिए डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। कास एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या कैंसिल होगा, देखिए कास एक्स माइनस बी और कास एक्स माइनस बी कैंसिल होगा। यहाँ पर देखिए इंटीग्रल आएगा साइन ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ, देखिए साइन अपान कास, ये हो जाएगा tan एक्स माइनस बी माइनस, यहाँ पर क्या आएगा tan एक्स माइनस ए, ठीक है, होल इंटीग्रल। और अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। tan का इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या होता है, log sec x, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी, ठीक है, इतने का इंटीग्रल होगा log sec x माइनस बी माइनस log मॉडुलस sec x माइनस ए, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। इसको आप log की प्रॉपर्टी से लिख सकते हो 1 साइन ए माइनस बी इंटू log मॉडुलस सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए प्लस सी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको कास में भी चेंज कर सकते हो, सेक को 1 कास, ठीक है। चलिए एक लाइन लिख देते हैं। आंसर हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 साइन ए माइनस बी इंटू log, ठीक है। इसको आप और इसको कास में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा log मॉडुलस कास एक्स माइनस ए अपॉन कास एक्स माइनस बी प्लस सी, ठीक है। इसको आप कास के टर्म में ऐसे लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसको आप इंटीग्रेट करने के लिए सेपरेट कर लो। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर 1 कास स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा tan x, ओके।
ओके। इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस काट माइनस पहले से ये हो जाएगा काट एक्स प्लस सी। ओके, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखो। इंटीग्रल ऑफ e पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस x अपॉन ये cos स्क्वायर e की पावर x इंटू x dx। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, e की पावर x इंटू x इज इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x 1 प्लस x dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर x 1 प्लस x dt होगा। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ i इज इक्वल टू e की पावर x इंटू 1 प्लस x टोटल अपॉन cos स्क्वायर t इंटू 1 अपॉन e की पावर x 1 प्लस x dt। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रल क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर t dt, और इसको आप लिख सकते हो sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, tan t प्लस c। ये आ जाएगा tan t की वैल्यू कर दीजिए e की पावर x इंटू x प्लस c। ओके, ये फाइनल आंसर होगा। ओके, तो एक्सरसाइज 7.3 के सभी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।